Very good morning, students. I hope you all are good and doing great in your studies and also revised your previous chapter. Today, we are going to start our chapter 2, which is MS Access 2016. Without wasting any further time, let's dive into the chapter. The name of our chapter is MS Access 2016, and the topics which we will discuss here are database, relational database management system, database object, MS Access 2016, opening access, creating an access database, components of access window, data types, primary key, viewing a table, switching views, creating a table, manipulating data, relationship, creating a relationship, and to open an existing access database. Now, before that, we have an amazing thought which is dreams don't work unless you do. Let's do in this activity which says rearrange the letters to find the words with the help of the given hints. So, as we can see from the very first word is data. So, we will write here data. Then the other can be from here field, which is FIELD. Then the next can be record, which is RECORD. So we will write here record. Then the next can be MSACCES, which is MS Access. Next can be WINDOW, window. Then the next can be DATABASE, database. Then the next can be TABLE, which is table. And the last one can be OBJECT, object. So let's begin. There is a boy who says, "Hi Kavya, today we shall learn about Access 2016." Then she replies, "What is this, Mayank? I haven't heard about it before. Is it difficult to understand?" Then he says, "No, dear, don't worry. It is a database. But before you ask any question, let me explain what a database is. Database is a collection of data related to a particular topic or subject from which specific information can be efficiently retrieved." Then she says, MS Access एक पॉपुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो हमारी हेल्प करता है टू क्रिएट अपडेट एंड मेंटेन द डेटाबेस क्विकली. डेटा इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर. डेटा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है टू मैनेज आर रूटीन एक्टिविटीज. हाउएवर जो डेटा है वो एक रॉ एंड अनप्रोसेस्ड फॉर्म में होता है जो मीनिंगलेस है. बट व्हेन सच डेटा इज कन्वर्टेड इनटू इंफॉर्मेशन it can be easily interpreted. Hence, ये essential है to provide a structure to the available data and organize it, which can be achieved with the help of database. ये enable करता है हमें to edit, store, manage and retrieve the information easily and quickly as when required. Now, database क्या है? Database एक collection होता है किसी भी information का in the form of fields, records, files जो ऑर्गेनाइज्ड है सो दैट हम उनको इजीली एक्सेस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं एंड अपडेट कर सकते हैं. जो फील्ड है वो एक सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है. रिकॉर्ड इज वन कंप्लीट सेट ऑफ फील्ड एंड फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड. तो फॉर एग्जांपल टेलीफोन डायरेक्टरी सिमिलर टू अ फाइल. ये कंटेन करती है लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड ईच ऑफ विच कंसिस्ट ऑफ टू फील्ड यानी कि नेम एंड टेलीफोन नंबर. तो अगर हमें इंफॉर्मेशन एक्सेस करनी है फ्रॉम अ डेटाबेस, you have to use database management system यानी कि DBMS, and this is the collection of programs जो facilitate करते हैं हमें to enter, organize and select data in a database. फॉर एग्जाम्पल आप जैसे देख सकते हो ये हमारे पास दो फील्ड्स हैं जिसमें हमारे पास नेम है और हमारे पास उनके टेलीफोन नंबर है. तो ये हमारा डेटाबेस हो गया जिसके अंदर हमारे पास रिकॉर्ड भी है. Now there is another word which is data, जो collection होता है of facts and information for reference और analysis. Now advantages क्या होती है database की? सारी की सारी जो information है वो इकट्ठा collect हो जाती है, easy है to retrieve,
इंफॉर्मेशन कैन बी एक्सेस्ड इजीली एट एनी टाइम इन अ डिजायर्ड मैनर। ये रिड्यूस करती है डेटा एंट्री, स्टोरेज एंड रिट्रीवल कॉस्ट। ये अलाउ करता है टू शेयर डेटा इन इजी वे, मेनी पर्सन्स कैन एक्सेस सेम डेटा एट द सेम टाइम, एंड ये प्रोवाइड करता है हाई डेटा सिक्योरिटी। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं कि ड्यू टू कंप्लीटली ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल द यूजर्स। ये लॉन्ग टाइम लेता है टू रन इंडिविजुअल एप्लीकेशंस, डिफिकल्ट है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है टू डिजाइन अ डेटाबेस। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसके अंदर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि RDBMS। ये क्या होता है? RDBMS स्टैंड्स फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक प्रोग्राम होता है जो हमें अलाउ करता है टू क्रिएट, डिलीट, अपडेट और रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस एक ऐसा डेटाबेस सिस्टम है जो स्टोर और रिट्रीव करता है डेटा को एक टैबुलर फॉर्मेट में जो ऑर्गेनाइज्ड है इन द फॉर्म्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स। सो एन एग्जांपल ऑफ RDBMS इज टेलीफोन डायरेक्टरी। ये रिप्रेजेंट करता है टेबल जो स्टोर करता है नेम्स एंड फोन नंबर ऑफ एवरी मेंबर इन योर सिटी। आप बाय कर सकते हो डिफरेंट टेलीफोन डायरेक्टरीज फॉर योर सिटी एंड इंक्लूड कर सकते हो ईमेल एंड वेबसाइट एड्रेस along with other data. So with the help of RDBMS आपके पास दो सेपरेट डायरेक्टरीज हो जाती हैं, दैट इज एक ऐसा टेबल जो स्टोर करता है सेम इंफॉर्मेशन, ऑल्दो सेकंड सोर्स इंक्लूड करता है डेटा नॉट अवेलेबल इन द फर्स्ट। There is another cool fact which says relational database management system is based on the relational model तो introduce किया था EF Codney of IBM's St. John's Research Laboratory। नाउ डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? डेटाबेस ऑब्जेक्ट इंक्लूड करते हैं टेबल, इंडेक्स, क्वेरी, फॉर्म एंड रिपोर्ट। तो टेबल क्या है? टेबल एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट है जो स्टोर करता है डेटा को इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। सारे जो एलिमेंट्स होते हैं डेटाबेस के वो क्रिएट होते हैं बेस्ड ऑन द डेटा स्टोर्ड इन द टेबल। फिर आते हैं इंडेक्सेस। इनको हम यूज करते हैं एज अ मींस टू एक्सेस द डेटा किसी भी टेबल के अंदर से इन एन ऑर्डर दैट माइट नॉट बी अवेलेबल। क्वेरी क्या होता है? क्वेरी को हम यूज करते हैं टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस। फॉर एग्जांपल हम यूज करते हैं क्वेरी को टू गेट आवर स्टेटमेंट ऑफ बैंक अकाउंट। फॉर्म क्या होता है? ये अलाउ करता है टू एंटर डेटा, एडिट, डिस्प्ले द डेटा फ्रॉम द टेबल और अ क्वेरी इन द फॉर्म ऑफ फॉर्म। रिपोर्ट, रिपोर्ट जो है वो प्रिंटेड या फिर प्रिंटेबल समरीज होती हैं ऑफ इंफॉर्मेशन इन योर एक्सेस टेबल्स एंड क्वेरीज। Now, what is MS Access 2016? MS Access 2016 एक RDBMS है यानी कि Relational Database Management System है जो come up होता है as an integral part of the MS Office 2016 suite of applications। ये एक powerful GUI based RDBMS है using which हम क्या कर सकते हैं? Create कर सकते हैं customized database for self users या फिर use कर सकते हैं by small and medium sized businesses। ये एनेबल करता है हमें टू स्टोर, मैनेज, यूटिलाइज द डेटा इन एन एफिशिएंट मैनर एंड द डेटाबेस क्रिएटेड इन एक्सेस 2016 आर सेव्ड विद द एक्सटेंशन .accdb यानी कि एक्सेस डेटाबेस। नाउ ओपनिंग एक्सेस, अगर हमें एक्सेस को यूज करना है तो हमें पहले उसको ओपन करना पड़ेगा। तो फॉर दैट वी हैव सर्टेन स्टेप्स। सबसे पहले हमें स्टार्ट बटन पे जाना है, देन क्लिक ऑन एक्सेस। स्टार्ट बटन पे जाके हमने एक्सेस पे क्लिक किया तो हमारा एक्सेस ओपन हो जाएगा। किसी भी एक्सेस डेटाबेस को हम क्रिएट कैसे करते हैं? तो देयर आर 3 वेज जिनके अंदर हम क्रिएट कर सकते हैं डेटाबेस इन एक्सेस। तो दे आर, सबसे पहले होता है हम कोई ब्लैंक डेटाबेस चूज कर सकते हैं। दूसरा, यूजिंग अ टेम्पलेट, आपको टेम्पलेट भी मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पे ब्लैंक है तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? टेम्पलेट भी ले सकते हैं किसी डेटाबेस के लिए, डाउनलोड कर सकते हैं टेम्पलेट फ्रॉम द MS ऑफिस ऑनलाइन। नाउ क्रिएटिंग ब्लैंक डेटाबेस, ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट करना है तो क्या करेंगे? यू कैन क्रिएट अ ब्लैंक डेटाबेस बाय फॉलोइंग गिवन स्टेप्स। सबसे पहले क्लिक करना है ब्लैंक डेटाबेस पे, देन टाइप द नेम ऑफ योर डेटाबेस इन द फाइल नेम बॉक्स, देन क्लिक करेंगे हम क्रिएट बटन पे। एक्सेस एक ब्लैंक डेटाबेस आपके लिए क्रिएट कर देगा एंड एम्प्टी टेबल विल बी ओपन डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट टू एंटर द डेटा। तो दिस इज द ऑप्शन जिस पे क्रिएट करके आपका ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। नाउ एक्सेस विंडो के हमारे पास कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? तो ये हमारी एक्सेस विंडो है जिसपे हमारे को क्विक एक्सेस टूल बार मिलता है, टाइटल बार मिलता है,
रिबन मिल जाता है, ऑब्जेक्ट बटन एंड डेटाबेस विंडो। तो टाइटल बार क्या होता है? ये एक थिन बार होता है जो प्रेजेंट होता है हमारी विंडो के टॉप पे, तो डिस्प्ले करता है बहुत सारे आइटम्स जैसे नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट, मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन, क्लोज बटन एंड द एक्टिव डॉक्यूमेंट। फिर आता है क्विक एक्सेस टूल बार जो हमारे टाइटल बार के ऊपर प्रेजेंट होता है एंड इट इज यूज्ड टू परफॉर्म मेनी टास्क। तो ये डिस्प्ले करता है क्विक एक्सेस बटन जैसे सेव, अंडू, रीडू एंड कमांड्स। रिबन, रिबन एक हॉरिजॉन्टल बार होता है विच इज जस्ट बिलो द टाइटल बार। ये कंसिस्ट करता है टूल्स टू परफॉर्म वेरियस स्टैंडर्ड फंक्शंस। रिबन हैज टू पार्ट यानी कि टैब एंड ग्रुप, और ईच टैब जो है वो कंटेन करता है कुछ कमांड्स जो अरेंज होती हैं सिस्टमैटिक ऑर्डर में इन वेरियस ग्रुप्स। नाउ डेटाबेस विंडो, ये डिस्प्ले करती है ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट बटन्स। ऑब्जेक्ट बटन्स ये हेल्प करते हैं हमें टू नेविगेट थ्रू वेरियस डेटाबेस ऑब्जेक्ट। नेविगेशन पेन लिस्ट इज अवेलेबल बट इट लिस्ट ऑल अवेलेबल डेटाबेस ऑब्जेक्ट, हमारे जो भी डेटाबेस ऑब्जेक्ट हैं ये उनको लिस्ट करता है। स्टेटस बार ये डिस्प्ले करता है इंफॉर्मेशन अबाउट द करंट ऑब्जेक्ट या फिर व्यू। व्यू बटन्स दे स्विच बिटवीन वेरियस व्यूज ऑफ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। Now what are data types? Data types क्या होते हैं? Data type refer करते हैं to the name, size and type of various field. As you have learned earlier, table store करता है different type of data. So these types vary according to the field in a table. So you must know about data types. Some of them are as follows. So text field क्या होता है? ये contain करता है letters, numbers and symbols. Various numbers जो होते हैं text field के अंदर they are considered as text but not used for calculations. So the length of text field varies. For example, Aman and for example this, etc. Now numeric field क्या होती है? ये contain करती है सिर्फ numbers. ये कोई भी letters या symbols को accept नहीं करती. For example, this and this, जो सारे के सारे बस number ही contain करती है. फिर आता है currency field. ये contain करती है symbols for currency, decimal and comma wherever needed along with the digit. For example, 62, then sign of currency, then number, etc. डेट टाइम फील्ड ये कंटेन करता है डेट और टाइम को जो परफॉर्म कर सकते हैं हम कैलकुलेशंस इन दिस फील्ड। एग्जांपल दिस, दिस, दिस एटसेट्रा। यस नो फील्ड ये कंटेन करता है कैरेक्टर्स जो रिप्रेजेंट करते हैं यस, नो, ट्रू, फॉल्स। फॉर एग्जांपल टी इज यूज्ड फॉर ट्रू, वाई इज फॉर यस, एन इज फॉर नो एंड एफ इज फॉर फॉल्स। मेमो फील्ड ये कंटेन करता है लॉन्ग टेक्स्ट विद ऑल काइंड्स ऑफ डेटा। एग्जांपल हाय, आई एम कार्तिक, आई एम द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 एटसेट्रा। Now what is primary key? Primary key की होती है जो डिफरेंशिएट करती है रिकॉर्ड्स इन अ फाइल। जो डेटा स्टोर्ड है की फील्ड में वो कंटेन करता है डेटा दैट इज यूनिक टू अ स्पेसिफिक रिकॉर्ड। प्राइमरी की फील्ड जो है दैट कैन नॉट हैव रिपीटेटिव वैल्यूज। प्राइमरी की जो है वो रिपीटेटिव वैल्यूज को कंटेन नहीं कर सकती एंड कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक, और हम इसको ब्लैंक भी नहीं छोड़ सकते, जैसे स्टूडेंट आईडी हो गया, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। For example, we have student table जो contain करता है record for each student at a university. Student ID number would be a good choice of a primary key. यहाँ से जो student ID number होगा वो primary key के लिए एक बहुत अच्छा option है। क्यों? क्योंकि student ID से हम उसका name, हम उसका course, हम उसका year of admission सब कुछ निकाल सकते हैं। So the student first name and last name would not be a good choice as there is always a chance there that more than one student might have the same name. ये हो सकता है कि एक से ज्यादा स्टूडेंट का नाम सेम हो सकता है, उनका सरनेम भी सेम हो सकता है, तो इस वजह से स्टूडेंट आईडी एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा फॉर प्राइमरी की। नाउ व्यूइंग आर टेबल, एमएस एक्सेस अलाउ करता है हमें टू क्रिएट एंड एडिट टेबल्स एंड अदर डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स इन टू मेन व्यूज। बिफोर दैट वी हैव अ कूल फैक्ट व्हिच इज इफ यू डू नॉट डिफाइन अ प्राइमरी की, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आस्क करेगा आपको टू क्रिएट इट व्हेन यू सेव अ टेबल। तो सबसे पहला व्यू होता है हमारे पास डेटा शीट व्यू। टेबल व्यू दैट इज यूज्ड टू एंटर, डिलीट या मॉडिफाई डेटा इन अ टेबल उसको बोला जाता है डेटा शीट व्यू। द टेबल इन दिस व्यू, इस व्यू के अंदर जो टेबल है वो डिस्प्ले किया जाता है इन रोज एंड कॉलम्स एंड नेम ऑफ ईच फील्ड जो है वो डिस्प्ले किया जाएगा एट द टॉप ऑफ द कॉलम एज हेडर। Table is opened in datasheet view to perform different operations on data in a table like this. Now डिजाइन व्यू के अंदर क्या होता है? टेबल व्यू दैट इज यूज्ड टू डिजाइन द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल, यानी कि किसी भी टेबल के स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए हम डिजाइन व्यू में टेबल को ओपन करते हैं।
इट इज यूज टू स्पेसिफाई नेम, डेटा टाइप एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ फील्ड। प्राइमरी की जो है वो भी स्पेसिफाई करी जाती है इस व्यू के अंदर, एंड द स्ट्रक्चर ऑफ एन एग्जिस्टिंग टेबल कैन ऑल्सो बी चार्ज इन डिजाइन व्यू। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्विचिंग व्यूज। तो एमएस एक्सेस हमें अलाउ करता है टू स्विच फ्रॉम वन व्यू टू अनदर बाय फॉलोइंग either of the two options. पहला, click on the view option in the views group on the home tab to change the data desired view, which is this. Then या फिर हम क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं डिजाइन व्यू या फिर डेटा व्यू बटन पे इन द राइट कॉर्नर ऑफ द स्टेटस बार। नाउ क्रिएटिंग अ टेबल। टेबल को कैसे क्रिएट किया जा सकता है? देयर आर टू मेजर वेज given below to create a table by using tools available in the table group on the create tab. तो यूजिंग डेटा शीट व्यू या फिर यूजिंग डिजाइन। तो जब हम डेटा शीट व्यू को यूज करते हैं तो कैसे टेबल क्रिएट होगा? सबसे पहले हमें क्रिएट टैब पे जाना है, क्लिक ऑन टेबल इन द टेबल्स ग्रुप विच इज दिस। एक्सेस क्रिएट करेगा एक नया टेबल एंड सेलेक्ट करना है ऐड न्यू फील्ड कॉलम। बाय डिफॉल्ट वो ही सेलेक्ट करके देगा। क्लिक द कॉलम एंड टाइप ऑफ डेटा इन इट, प्रेस टैब की टू ऐड न्यू फील्ड इन द टेबल। Save the table by clicking Save button available in the Quick Access toolbar present on the title bar. आपको एक सुटेबल नेम देना है अपने टेबल को एंड क्लिक ऑन ओके बटन। नाउ अगर हम डिजाइन व्यू का यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले अगेन क्रिएट टैब पे जाना है रिबन में, फिर टेबल डिजाइन में जाना है इन टेबल्स ग्रुप विच इज दिस। टाइप नेम ऑफ अ फील्ड, फील्ड नेम में नेम डालोगे, जैसे कोई भी डाल सकते हो, स्टूडेंट आईडी, फिर प्रेस करनी है टैब की, देन मूव टू द डेटा टाइप कॉलम। Click on the drop down arrow and select करना है data type from the list. There is a fact which says the bottom half of the design view window display the field properties for the field type you have selected, and the field properties can be set to control the appearance of information present in incorrect entries, specify default values, etc. फिर उसके बाद आपको क्या करना है, टैब की प्रेस करनी है एंड टाइप करना है डिस्क्रिप्शन इन द फील्ड विच इज ऑप्शनल। फिर आफ्टर एडिंग ऑल द फील्ड्स आप सेव करोगे अपने टेबल को बाय क्लिकिंग सेव बटन जो क्विक एक्सेस टूल बार पे प्रेजेंट है। नाउ टू सेट प्राइमरी की। प्राइमरी की को कैसे सेट किया जाता है? राइट क्लिक करना है इन द एरो फॉर द फर्स्ट फील्ड यानी कि स्टूडेंट आईडी। एक शॉर्टकट मेन्यू आएगा आपके पास, वहां से आपको क्लिक करना है प्राइमरी की पे विच इज दिस। नाउ द सिलेक्टेड फील्ड जो है, आपकी जो सिलेक्टेड फील्ड है वो सेट हो जाएगी एज प्राइमरी की ऑफ द टेबल। नाउ एंटरिंग डेटा इन अ डेटा शीट व्यू। अगर हमें डेटा शीट व्यू में डेटा एंटर करना है तो हम क्या करेंगे? इफ यू वांट टू एंटर डेटा इनटू अ टेबल इन डेटा शीट व्यू यू हैव टू टाइप द वैल्यू इन द रिस्पेक्टिव फील्ड। आपको यहाँ पे अलग अलग फील्ड में रिस्पेक्टिवली डेटा टाइप करना है, देन प्रेस टैब की टू मूव टू द नेक्स्ट फील्ड टू टाइप इट्स वैल्यू। यू विल नोटिस दैट आफ्टर प्रेसिंग द टैब की जो लास्ट फील्ड है द इंटरसेक्शन पॉइंट तो मूव हो जाएगा टू द फर्स्ट फील्ड इन द नेक्स्ट लाइन। नाउ व्हाट इज मैनिपुलेटिंग डेटा? आप चेंज या मैनिपुलेट कर सकते हो डेटा को बाय डूइंग फॉलोइंग मॉडिफिकेशंस इन एमएस एक्सेस। जैसे सबसे पहले ऐड अ न्यू रिकॉर्ड या फिर रो। नया रिकॉर्ड या फिर रो ऐड करने के लिए क्या करना होगा? इफ यू वांट टू ऐड अ न्यू रिकॉर्ड प्लेस द कर्सर एट द लास्ट वैल्यू। लास्ट वैल्यू जो है फील्ड की वहां पे जाके कर्सर लेके जाना है, प्रेस करनी है टैब की या फिर राइट क्लिक करना है ऑन अ एरो, देन चूज न्यू रिकॉर्ड। नाउ नेक्स्ट इज नई फील्ड या कॉलम ऐड करना है तो क्या करेंगे? राइट क्लिक करेंगे कॉलम हेडर पे एंड देन चूज इंसर्ट फील्ड ऑप्शन विच इज दिस। नाउ अपडेट अ रिकॉर्ड। इफ यू वांट टू मॉडिफाई अ रिकॉर्ड आपको सिंपली क्लिक करना है किसी सेल पे दैट यू वांट टू अपडेट या मॉडिफाई, देन टाइप द न्यू वैल्यू। डिलीट करने के लिए आपको क्या करना है? इफ यू वांट टू डिलीट अ स्पेसिफिक रो या कॉलम सेलेक्ट करना है आपको इंटायर कॉलम बाय क्लिकिंग और द रो हेडर या फिर कॉलम हेडर और प्रेस करना है डिलीट की को, या फिर आप राइट क्लिक कर सकते हो माउस को और फिर डिलीट रिकॉर्ड को चूज करके यस बटन पे क्लिक कर देंगे। नाउ व्हाट इज रिलेशनशिप? रिलेशनशिप एक रूल होता है जो कनेक्ट करता है डेटा को फ्रॉम टू और मोर टेबल्स इन अ डेटाबेस। इन अ रिलेशनल डेटाबेस जो डेटा है इन वन टेबल वो रिलेटेड होता है टू द डेटा इन अदर टेबल। टेबल रिलेशनशिप वर्क करता है बाय मैचिंग डेटा इन द की फील्ड ऑफन इन अ फील्ड विद सेम नेम इन बोथ टेबल। तो इन मोस्ट केसेस ये जो मैचिंग फील्ड्स होती हैं दे आर द प्राइमरी की फ्रॉम वन टेबल जो प्रोवाइड करती है एक यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ईच रिकॉर्ड and a foreign key in the other table.
तो टेबल्स कैन बी रिलेटेड इन वन ऑफ द थ्री डिफरेंट वेज। जो टेबल है वो इन तीनों में से किसी भी एक वे में रिलेटेड हो सकते हैं, जैसे वन टू मैनी या मैनी टू वन। मतलब वन टू वन क्या बताता है कि वन टू वन रिलेशनशिप का मतलब होता है ये जो रिकॉर्ड है फर्स्ट टेबल में that can have only one record that matches it the second table. Also, each record in the second table can only have one matching record from the first table. This is uncommon type of relationship in Access 2016. तो इसमें क्या होता है कि जैसे टेबल वन पे स्टूडेंट टेबल टू के एड्रेस से मैच कर रहा है, एंड सिमिलरली इधर भी एक ही मैच है। वन टू मैनी का मतलब होता है ऑफन रिफर्ड एज मास्टर डिटेल या फिर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। इसको यूज किया जाता है जब हम रिलेट करते हैं एक रिकॉर्ड को फ्रॉम वन टेबल टू मैनी रिकॉर्ड्स इन अदर टेबल। इसका मतलब है जो टेबल वन का रिकॉर्ड है उसमें सिर्फ एक ही मैचिंग है, बट टेबल टू में बहुत सारी मैचिंग है। लाइक टेबल वन में क्रिकेट टीम है तो उस क्रिकेट टीम में बहुत सारे टेबल टू के क्रिकेटर्स हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो टेबल टू में क्रिकेटर्स हैं वो सारे किसमें होंगे, एक ही टीम में। तो वन टू मैनी यानी कि एक क्रिकेट टीम में बहुत सारे टेबल टू के क्रिकेटर्स हो सकते हैं। मैनी टू मैनी का मतलब होता है ये जो रिलेशनशिप है इसका मतलब है दैट ईच रिकॉर्ड इन वन टेबल दैट कैन बी there can be many records in other table, and for each record in the second table there can be many in the first। मतलब हो सकता है कि फर्स्ट टेबल के लिए बहुत सारे रिलेशनशिप बहुत सारे रिकॉर्ड्स हो टेबल टू में और टेबल टू के लिए भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स हो टेबल वन में। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कैन नॉट बी डायरेक्टली रिप्रेजेंटेड इन रिलेशनल डेटाबेस प्रोग्राम्स हैव टू बी बिल्ट by using two or more वन टू मैनी रिलेशनशिप्स। जब हम वन टू मैनी रिलेशनशिप्स को ज्यादा बिल्ड कर देते हैं फिर कनेक्ट करते हैं तब जाके मैनी टू मैनी बनता है, ये डायरेक्टली नहीं बनता। नाउ क्रिएटिंग अ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप को क्रिएट कैसे किया जा सकता है? आप रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हो बाय प्लेसिंग कॉमन फील्ड्स। कॉमन फील्ड्स को प्लेस करके इन टेबल्स दैट आर रिलेटेड एंड बाय डिफाइनिंग रिलेशनशिप बिटवीन योर टेबल्स। फ्रॉम द गिवन स्टेप्स आप क्रिएट कर सकते हो रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स। सबसे पहले आपको टेबल क्रिएट करना है, ओपन करना है वन ऑफ देम, देन क्लिक ऑन डेटाबेस टूल्स। आप डेटाबेस टूल्स पे जाओगे, देन आपको क्लिक करना है ऑन रिलेशनशिप फ्रॉम रिलेशनशिप ग्रुप। द शो टेबल डायलॉग बॉक्स आपके पास आएगा स्क्रीन पे। सेलेक्ट करना है टेबल एंड क्लिक करना है ऑन ऐड बटन। सेलेक्ट अनदर टेबल टू लिंक, क्लिक ऑन ऐड बटन, देन क्लिक ऑन क्लोज बटन। ड्रैग करना है प्राइमरी की को ऑफ द पेरेंट टेबल एंड ड्रॉप करना है इनटू द सेम फील्ड इन द चाइल्ड टेबल। एक एडिट रिलेशनशिप डायलॉग बॉक्स आएगा आपके पास विच इज दिस। फ्रॉम देयर आप क्या करोगे, क्रिएट बटन पे जाओगे और जो रिलेशनशिप है दोनों टेबल का वो क्रिएट हो जाएगा। नाउ टू ओपन एन एग्जिस्टिंग एक्सेस डेटाबेस। अगर आपका ऑलरेडी कोई एक्सेस डेटाबेस बना हुआ है तो आप उसको ओपन कैसे करोगे? सबसे पहले आप फाइल टैब पे जाओगे, ओपन बटन को चूज करोगे विच इज दिस। उसके बाद में आप ब्राउज ऑप्शन पे जाओगे, ओपन डायलॉग बॉक्स आएगा आपके पास। सेलेक्ट करोगे अपनी डेटाबेस फाइल जहां पे भी आपने लोकेट करी होगी व्हाइल सेविंग इट, फिर आप ओपन बटन पे क्लिक कर दोगे तो आपकी एग्जिस्टिंग डेटाबेस फाइल ओपन हो जाएगी। लेट्स रिवाइज द चैप्टर। डेटाबेस एक कलेक्शन होता है of information in the form of field, record and files. Record is one complete set of field. DBMS कलेक्शन है प्रोग्राम्स का जो फैसिलिटेट करता है हमें टू एंटर, ऑर्गेनाइज एंड सेलेक्ट डेटा इन अ डेटाबेस। RDBMS stands for Relational Database Management System. रिपोर्ट्स जो है वो प्रिंटेबल समरीज होती हैं ऑफ द इंफॉर्मेशन इन योर एक्सेस टेबल एंड क्वेरीज। मेमो फील्ड कंटेन करता है लॉन्ग टेक्स्ट विद ऑल काइंड ऑफ डेटा। Primary key field cannot have repetitive values and cannot be left blank. Tables in a datasheet view is displayed in rows and columns. Relationship एक rule होता है जो connect करता है data को from two or more tables in a database. Let's do the exercise of the chapter first. So now our very first question is darken the correct option in OMR sheet, and the first question is MS Access is a dash software. तो MS Access जो है वो हमारा application software होता है, so it is from here none of these यानी कि option D. Then we have MS Access, which data type is appropriate to store large text and numbers. Large text, which is option C. Then collection of related table is called database, option A. Row in a table is called
record, which is option C. And then, which of the following is not a valid type in MS Access? So memo, currency, and text are there, but not pictures, which is B. Now, moving to the next, which is fill in the blanks. MS Access is a dash management software. So it is a database management software. Dash is collection of facts and objects for reference or analysis. So data. In a dash relationship, each record in one table has the most one related to record in another table, one to many. Primary key identify each dash the table. So primary key identifies each data in a table. Now next is true false. MS Access is a relational database management system. False. Primary key identifies the size of database. False. Reports and printable summaries of the information in your access tables and queries. True. Two tables can have the same name in database. False. So students, this was your chapter about MS Access 2016. I hope it is clear to you. Do revise this chapter again and also learn the exercise. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care. Bye bye.